फ्रेंड्स, मैंने जब ये होंडा हाइनेस CB350 का टेस्ट राइड किया था ना द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेरे को मन में ख्याल आया था कि किसी भी मोटरसाइकिल का इतना सॉफ्ट क्लच कैसे हो सकता है। यू कैन प्रेस इट विथ वन सिंगल फिंगर। सो आई डिसाइडेड टू डेडिकेट अ वीडियो टू होंडा हाइनेस का रेवोल्यूशनरी क्लच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंपल प्लेजर्स। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे एंड आई होप दैट दिस वीडियो फाइंड्स यू इन अ ग्रेट मूड। ओके, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट अ न्यू टेक्नोलॉजी, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। नाउ इट्स नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा टाइम हो गया है आके, बट you might ask me why do you want to create a video on slipper and assist clutch? Okay, now there are three reasons why I have created this video on this particular subject. One is that I own Honda Haines CB350 bike which has a slipper and assist clutch. Now as a rider, okay, I should be aware of the technology that my motorcycle has, right? I should at least be aware of the basic functionalities of all the technology that the motorcycle has. I need not know to an extent of an automobile engineer, right? An automobile engineer would basically know everything in depth. I need not know to that extent, but at least basic functionalities I should be aware of. Okay, that's point number one. Point number two, for a new buyer, okay, today if you go to any motorcycle shop or showroom, most of these motorcycle manufacturing companies have started selling this, okay, that my bike has a slipper and assist clutch. Okay, they've started putting it everywhere in their brochures, so on and so forth. Okay, so they're selling this as a new technology. They are selling it. So why, Dada? Why? This is business. we should be aware that is it worth buying a motorcycle and for a particular cc and for my requirements, whether I need the slipper assist clutch or not. Okay, so we should be aware, because if you are aware, you will be more prudent about buying a right motorcycle for you, right? So that's one of the objectives. You should also know whether a slipper and assist clutch should be the sole reason for you to buy a motorcycle. So that's the reason why I wanted to create this video. And the third reason is basically I love sharing. Okay, whatever I know I tend to share with everybody. Okay, बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो वैसा ही है. Okay, so friends, first of all, let me clarify, I am not an automobile engineer. Okay, I am basically an engineering graduate from a different stream, not an automobile engineer. So let me clarify that upfront. Okay, कुछ बोलते हैं ना, once an engineer always an engineer, वो वाला हिसाब है. So without delaying further, let's start this video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मुझे खुशी होगी आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ. लेट्स स्टार्ट. ओके, स्लिपर एंड असिस्ट क्लच. फ्रेंड्स, मान लो आप एक 100 के ऊपर क्रूज़ कर रहे हो, राइट, और आपको सडनली डी एक्सलरेट करना है या टर्न करना है, आगे कोई आ गया, तो आप क्या करोगे? आप या तो ब्रेक दबाओगे, फ्रंट का या रियर का, या फिर आप इंजन ब्रेकिंग करोगे, राइट? Let's say you are cruising at 100 plus. Okay, now you have to use an engine braking. Okay, you want to use the engine brakes. So what will you do? You will try to press the clutch and downshift, right? But अगर आप वो हाई स्पीड पे, उतने स्पीड पे अगर आप डाउनशिफ्ट करते हो, फॉर एग्जांपल 5th से आप 4th पे लेके आते हो बाइक को, तो बेसिकली होगा क्या, जो इंजन की जो RPM है, या राइट, जो इंजन की जो मोमेंटम है और जो आपके रेयर व्हील का की जो मोमेंटम है, राइट, वो मैच नहीं होगी. ओके, बिकॉज आपने डाउन शिफ्ट किया, यू आर बेसिकली इंस्ट्रक्टिंग द इंजन टू स्लो डाउन. बट द रेयर व्हील 100 के ऊपर जो आप चला रहे हो, तो रेयर व्हील को सडनली पता नहीं चलेगा कि मुझे स्लो डाउन होना है. तो रेयर व्हील क्या करेगा? इट विल कीप मूविंग. ओके, तो वो रेयर व्हील जो टॉर्क होता है ना, तो इसके लिए स्लिपर असिस्ट का एक दूसरा भी नाम है एक्चुअली, बैक टॉर्क लिमिटिंग क्लच. तो बेसिकली होता क्या है, जब भी आप डाउन शिफ्ट करते हो हाई स्पीड पे, तो रिवर्स टॉर्क हो जाता है, बिकॉज जो रेयर व्हील की जो एनर्जी है, इट ट्राइज टू पास ऑन टू द इंजन. रेयर व्हील स्टार्ट्स टू एक्चुअली रन द इंजन.
टू स्पीक इन अ लेमेंस लैंग्वेज। ओके, तो वो रिवर्स टॉर्क जनरेट करता है रेयर व्हील, बिकॉज रेयर व्हील को पता नहीं चल रहा है ना इतना फटाफट कि मुझे स्लो डाउन करना है। तो उसमें होता क्या है, जब ये कम्युनिकेशन गैप होती है बिटवीन इंजन एंड द रेयर व्हील, ओके, वो टाइम पे यू नो देयर आर मेनी थिंग्स, यू विल एक्सपीरियंस जर्क्स, बहुत सडन जर्क फील करेंगे, या कभी कभी इंजन कभी कभी आपका जो रेयर व्हील है वो लॉक हो जाएगा, और रेयर व्हील लॉक हो जाएगा तो आपकी जो बाइक है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। इट वोंट बी इन अ स्टेबल कंडीशन, और जब बाइक स्टेबल नहीं है तो आपको टाइम लगेगा उसको पहले स्टेबल करूं, एंड देन आपको टर्न करना है, आपको रोकना है, आपको स्लो डाउन करना है, आपको कंट्रोल योर बाइक, उसमें आपको टाइम लग जाता है बिकॉज रेयर व्हील यू नो लॉक हुआ है। ओके, तो स्लिपर असिस्ट यहाँ पे क्या करता है, स्लिपर असिस्ट बेसिकली जैसे नाम ही है उसका, राइट, स्लिप, वो स्लिप करता है इन अ सेंस, वो रेयर व्हील को और इंजन को डिस्कनेक्ट कर देता है। ओके, जब हम क्लच दबाते हैं तो हम इंगेज करते हैं, ओके, वी आर इंगेजिंग द इंजन विद द रेयर व्हील, विद द चेन। और जब हम स्लिपर क्लच यूज़ करते हैं, ये वाली न्यू टेक्नोलॉजी, तो हम उसको डिसंगेज करते हैं। ओके, तो आपका व्हील घूमता रहेगा, आपका जो रेयर व्हील है इट विल कीप मूविंग, ओके, एंड इट वोंट गेट लॉक्ड। सो व्हेन द रेयर व्हील इज़ नॉट गेटिंग लॉक्ड, यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर योर बाइक। उसको टर्न लेना है, उसको आपको मैन्यूअर करना है, आपको उसको स्लो डाउन करना है। सो इफ़ यू हैव मोर कंट्रोल, यू आर मोर सेफर, राइट। सो दैट्स व्हाई स्लिपर असिस्ट क्लच इज़ एक्चुअली अ सेफ्टी फीचर। स्लिपर क्लच, नॉट द असिस्ट का फंक्शन अलग है, वो आई विल कम टू दैट इन अ मिनट। ओके, so slipper clutch is actually a safety feature in a way, but वो generally वो रेसेस में काम आता है, you know, जो हाई स्पीड रेसेस है आपकी, जैसे मोटो जीपी है, डेटोना 200 है, और भी काफ़ी सारी हैं, सुपर बाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, मोटो क्रॉस है, और एक है आइल ऑफ मैन टीटी। सो देयर आर मेनी वर्ल्ड रेसेस चैम्पियनशिप्स, राइट, फॉर मोटरसाइकिल, ग्रैंड प्री बोलते हैं जिसको। ओके, तो जो रेस में क्या होता है ना, जब जो मोटरसाइकिल्स होती हैं वो 250 पे चलती हैं, 250 280 की स्पीड पे चलती हैं, और आपने देखा होगा जब वो टर्न करते हैं ना एट अ हाई स्पीड, दे डोंट प्रेस ब्रेक्स, वो पीछे की ब्रेक नहीं दबाते हैं। वो जब भी टर्न करते हैं तो वो लोग बेसिकली इंजन ब्रेकिंग करते हैं। ओके, वो 250 से सीधा 100 पे लेके आते हैं उसको एट अ वेरी वेरी हाई स्पीड, बिकॉज अगर वो नहीं करेंगे तो हार जाएंगे रेस, राइट, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दैट स्पीड। सो दे डू एन इंजन ब्रेकिंग, दे डाउनशिफ्ट, फटाफट डाउनशिफ्ट होता है, उसमें स्लिपर क्लच होता है ना, तो उनको पता नहीं चलता है। स्लिपर क्लच जो होता है वो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है, जर्क्स नहीं देता है, व्हील को लॉक नहीं करता है। ओके, तो उसकी वजह से वो they are able to actually bring that vehicle from 250 to say 100-120, and then again swiftly उसको फिर 250 पे लेके जाते हैं। So this all is done in the back end through slipper clutch. Okay, so that's the function of a slipper clutch. Okay, now और एक लेमन टर्म्स में अगर समझाना हो तो फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपके बाइक में स्लिपर क्लच नहीं है, एक नॉर्मल क्लच है, तो आप हाई स्पीड पे जा रहे हो और सडनली आपने उसको डाउन शिफ्ट किया, 5th से 4th पे लेके आए, राइट। तो जब आप 4th पे लाते हो ना, तो इंजन का आप आरपीएम देखेंगे ना, हिट्स द रेड लाइन। ओके, इंजन का आरपीएम बढ़ जाता है। ओके, तो उसकी वजह वो तो स्लिपर क्लच क्या करेगा इन दिस सिचुएशन, उसको वो उतना आरपीएम को बढ़ने नहीं देगा। वो फॉर एग्जांपल अगर आपका बाइक में स्लिपर क्लच नहीं है और आपने सडनली डाउन शिफ्ट किया, तो जो इंजन की जो रेड लाइन, इंजन विल बेसिकली टच टू 12,000 आरपीएम्स, और वहीं पे अगर स्लिपर असिस्ट क्लच है तो वो उसको 8,000 9,000 आरपीएम्स तक लेके जाएगा। ओके, वो इतना रेड लाइन तक नहीं लेके जाने देगा। दैट्स द फंक्शन इन अ लेमेंस लैंग्वेज। इसको और भी एकदम सादे भाषा में समझना है तो बेसिकली मान लो आपके बाइक में नॉर्मल क्लच है और आप इंजन ब्रेकिंग करते हो, तो वो जो इंजन ब्रेकिंग का फोर्स है ना,
वो रेयर व्हील में ट्रांसफ़र हो जाता है वाया चेन, और उसकी वजह से आपका रेयर व्हील जो है वो वॉबल करने लगता है एंड इवेंचुअली यू विल लूज ट्रैक्शन। और वहीं पे अगर आपके मोटरसाइकिल में स्लिप एंड असिस्ट क्लच है या स्लिपर क्लच है तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली क्लच को पार्शली स्लिप करेगा अंटिल द इंजन स्पीड, जो आपकी इंजन स्पीड है और व्हीकल की स्पीड मैच नहीं हो जाती है। जब ये दोनों स्पीड मैच हो गई तो यू हैव मोर कंट्रोल, राइट? सो दैट्स द पर्पस ऑफ स्लिपर क्लच। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू अंडरस्टैंड, यू नो, फॉर अ राइडर। लेट्स अंडरस्टैंड असिस्ट क्या काम करता है। स्लिपर तो हो गया, स्लिपर क्लच। नाउ देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड ए स्लिपर एंड असिस्ट क्लच, जो हाइनेस में भी है, होंडा हाइनेस CB350 में भी स्लिपर एंड असिस्ट क्लच है। ओके, नाउ असिस्ट क्या करता है? असिस्ट बेसिकली जब हम क्लच दबाते हैं ना, तो जो स्प्रिंग्स होते हैं, वो जो स्प्रिंग्स होते हैं फ्रेंड्स, वो लाइटर होते हैं। दे आर लेस एंड लाइटर बिकॉज जो स्लिपर एंड असिस्ट क्लच की जो टेक्नोलॉजी है, जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से जो क्लच है, जो स्प्रिंग्स हैं, वो लाइटर होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नीड लेसर फोर्स टू ऑपरेट क्लच। यू टेंड टू फील जो क्लच है उसमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है, सॉफ्ट हो जाता है वो। बेसिकली असिस्ट एक टेक्नोलॉजी है ना वो। सो द बेसिक थिंग इज़ कि अगर आपको कम एफर्ट लगेगा तो आप टायरिंग कम फील करोगे, आप कम टायर होगे, राइट? तो आपके हाथ उंगलियों में थकान कम होगी। अगर आप सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो तो यू विल फील लेस टायर्ड। सो if your bike should have a slip assist clutch, the answer is yes, because अगर assist है तो your hands will feel less tired. Although आजकल even non slipper and assist clutch की जो बाइक्स देखी है मैंने, the clutch seems to be softer compared to what we used to ride, you know, in those back old days of REs, you know, तो वहाँ पे क्लच थोड़ा हार्ड होता था। आजकल न्यू बाइक्स के क्लच काफ़ी सॉफ्ट आते हैं, बट असिस्ट जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू मेक थिंग्स इवन मोर ईजियर। ओके, नाउ कमिंग टू अ मोटरसाइकिल विच शुड हैव अ स्लिपर क्लच। जो नॉर्मल मोटरसाइकिल है, जो हम रेगुलरली रोड्स पे चलाते हैं, हाइनेस हो गई, RE हो गई, 350 400 cc हिमालयन हो गई, या 650 इंटरसेप्टर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? द वंस दैट वी राइड, KTMs में भी स्लिपर एंड असिस्ट क्लच आता है। ओके, नाउ बेसिकली फ्रेंड्स, आप 80 पे चला रहे हो ना, तो इट माइट नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इफ़ यू हैव अ स्लिपर क्लच, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। 70-80 के स्पीड पे स्लिपर अगर क्लच नहीं भी है तो भी चलेगा, बिकॉज ब्रेक से ही काम हो जाता है, राइट? बट समटाइम्स इफ़ यू आर राइडिंग एट 100, 110, 120, आजकल हाइनेस तो 100 पे कैसे पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता है। ओके, सो इट वोंट डू एनी हार्म टू हैव दैट टेक्नोलॉजी इन योर मोटरसाइकिल, राइट? यू नेवर नो व्हेन कभी वो काम आ जाए। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल हाइनेस में है, ओके? ट्रैक्शन कंट्रोल कभी भी यू नो प्लग इन हो जाएगा, कभी भी काम आ जाएगा। यू विल नेवर इवन नो इन द बैक एंड कि ट्रैक्शन कंट्रोल की वजह से उसे ट्रैक्शन कंट्रोल ने आपका लाइफ सेव कर दिया। सो एनी सेफ्टी फीचर विच इज़ गिवन इन अ मोटरसाइकिल should always be welcome. That's my basic fundamental, that's my basic concept कि अगर सेफ्टी फीचर है तो उसको ले लो। ओके, देयर इज़ ज़्यादा सोचो मत कि इस अगर नहीं है, और अगर आपकी 70, 80, 90 पे ही आप गाड़ी चला रहे हो और सिटी पे ही गाड़ी चला रहे हो 80 के स्पीड पे, तो इट वोंट मैटर, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आप हाईवे पे चला रहे हो और 100 के ऊपर भी कभी कभी चलाते हो, आप रेगुलरली चलाते हो, तो इट वोंट हर्ट यू to have a slipper clutch, okay? Because as I said, वो प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप हाई स्पीड पे उसको डाउन शिफ्ट करते हो तो इट एब्जॉर्ब्स द इंटायर प्रेशर, जर्क्स फील नहीं होगा, व्हील को लॉक होने नहीं देगा, ओके? यू विल बी इन मोर कंट्रोल, ओके? सो इट्स ऑलवेज हेल्पफुल टू हैव दिस टेक्नोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ हेल्प होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी मोर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट more such videos for you. Okay,
So until we meet again, happy riding.